Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm very happy to see all you girls sitting very organized in Inara school today to listen to a very important topic, that is the 6 C's of character, or a lecture that is on the importance of building a character. All those girls who cannot see me, please adjust yourself in this line. I want everyone to see me and I want to see you as well. And I thank the management to have called me for this very important topic for the girls. Because I am recording on my phone and also the others are recording, I am in my face mask. But inshallah, when we finish, we can meet face to face. So are you all comfortable with English? Yes. You can understand well? Yes. Okay. I'll use a few Urdu words if you like to. Okay, inshallah. So, the topic is the 6 C's of character. Were you told about this before? Was the topic told to you? Okay, I thought maybe you were told and you have already googled it, because it's the time of AI, artificial intelligence. So you keep having a phone in your hand, right? But what do you do with your phone? Do you waste your time playing games? Do you take more information on the phone? Do you gain knowledge on the phone? Yes? So it's the amount of choice you have. You have the choice of using anyways, right? So you can choose the games, you can choose whatever you like. But you should have the mindset of what you should like, right? So that is what we are going to discuss today, that what is it that you like. Okay, inshallah? So, as we are all Muslims, alhamdulillah, we are all wearing scarves here, we are following the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. What is a religion? I want you all to even speak when I am asking about you, right? Okay, somebody can raise your hand and tell me what is Islam and what is religion. Can anybody just tell me? Anybody? What is Islam? Yourself. The third girl. Yeah, anyone who said? दीन क्या है? हम लोग इस्लाम फॉलो करते ना? हाँ बोलिए. Islam is the way of living a life. Very good. Allah told Yes. and by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Life. Yes. MashaAllah. That's the perfect answer. Islam is the way of life, and by the example of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the first thing is Allah Subhanahu wa Ta'ala revealed it to us. It is the command of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, if you just take it into small pieces, I can say it is a set of beliefs. Okay, it is a set of belief. आप क्या यकीन करते हो? आपका belief क्या है? And then the second part is it is a set of rituals. Rituals माने actions जो आप करते हैं, है ना? Set of belief क्या है? First pillar of Islam. What is it? Shahada. Tawheed. What do you do in that? You say the kalima. Kalima Tawheed, right? It is the belief. Then the ritual is the second pillar of Islam. What is that? It is Salah, namaz, है ना? You do a set of actions. You do your hands like this, then you do your hands like this, and then you do go in the ruku. These are all actions which are called as rituals. A set of beliefs, then a set of rituals, and then whatever you do according to that will become your personality. Okay, your character. एक बच्ची है जो इस्लाम फॉलो करती है, नमाजें पढ़ती है और अच्छा काम करती है, झूठ नहीं बोलती है. This is all your character. Okay, so who is guiding you? It is the set of beliefs and a set of actions, and that's why psychologists say that when you think the way you think, that is what you become. So watch your words. Watch your thoughts. Okay, the first thing is thoughts. Watch your thoughts, because your thoughts will become your words. Watch your words, because your words will become your actions. Watch your actions, because your actions will become your personality. Watch your personality, because your personality will become your character.
And character is what defines you. Any friend that you pick up from your class and you have a perspective in the mind that this girl is good and this girl is bad. This one friend is good, that one friend is bad. How? Because what was the initial thought in your mind? The thinking that she has, the words that she speaks. Imagine of a person who hurt you last time. Someone who hurt you, what was that it hurt? Was it their actions or was it their words? Their words. So how did the words come out of the mouth? Because they were in the thoughts. How you think. So whenever you think, see, thoughts come automatically. They are not controllable. कुछ भी दिमाग में आ सकता है. जब टीचर पढ़ा रही होगी तो डे ड्रीमिंग चलती रह सकती है ना. Any one of you can start daydreaming. That's natural. But the point is, do not dwell in them. Dwell मतलब उसी में ही जीना गलत है. Thoughts आ सकते हैं. They come like clouds. Clouds हमेशा रहते क्या? हमेशा एक ही शेप में रहते क्या? नहीं रहते. Clouds change their shape. They change their place. It's like that. So वैसे ही thoughts है हमारे. थॉट्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन उसी में रह जाना गलत है. डू नॉट ड्वेल इन योर थॉट्स इन अ बैड वे. तो ये जो थॉट्स है, द थॉट्स यू हैव टू कंट्रोल. कब ये थॉट आएगा? व्हेन दिस थॉट विल कम, व्हेन दिस थॉट विल गो, दैट इज इन योर कंट्रोल. ओके, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट द कंट्रोल पार्ट इन द लास्ट वन. सो do not dwell in the bad thoughts. You have to dwell in the right thoughts. Who will tell you what is the right and wrong? What is the right and the wrong? Who will tell you? And yes, and why is it important to have a good character? I'll just tell you now. As you said, Islam is a way of life designed by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So did the Quran say about good character? What did the Quran say? Allah subhanahu wa ta'ala said that I have sent Prophet sallallahu alaihi wasallam in the best of character, and he is the example for you. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. From the best of character is Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his life is in front of us through the hadith, right? When we read the hadith, we know the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam tell about the good character? He said, none of you is a good Muslim. He said, none of you is a good Muslim unless he has a good character. आप में से कोई अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि आपके पास अच्छे अखलाक ना हो, है ना. तो ये ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई पूछता है कि क्या अच्छे अखलाक इंपॉर्टेंट है या ज्यादा दीनदार होना इंपॉर्टेंट है, और फिर दीनदार होना इंपॉर्टेंट नहीं है. इज द सेम लाइक हैविंग टू आईज. इफ आई आस्क यू, शुड आई रिमूव योर राइट आई और द लेफ्ट आई, व्हाट वुड यू से? ये भी नहीं, वो भी नहीं, दोनों भी आंख होना है ना. दोनों भी आंख इंपॉर्टेंट है. तो अच्छा कैरेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और दीनदार होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और इसके ही कॉन्ट्रास्ट में आई विल टेल यू वन थिंग. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए. He asked him that, "Oh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, there is a woman in our neighborhood who is very religious, extremely religious, deendar hai, but she is very bad to her neighbors. And there is another woman in the neighborhood who is not that religious, sometimes good, sometimes not, but she is extremely good to the neighbors. What's their case?" Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told that the woman who is extremely religious but she is not good to her neighbors, if she continues like this, then she will end up in hellfire. And the person who is very good to the neighbors but not that perfect in the religiosity, he said, if she continues like that, her religiosity will also increase and she will end up in the Jannah. Subhanallah. So having a good character will complete your religiosity. But whereas if you have complete religiosity and the behavior of a very good practicing Muslim but no character, that will end you up in a hell fire. So which one do you like to? Which one do you want to choose for yourself? Character or deen? Those are intelligent who are telling both. So we want both. We want to complete each other, right?
We want to complete the religiosity as well as the character, because both together will bring us to the Jannah. And Prophet sallallahu alaihi wasallam also told that if somebody wants to gain Jannah, as if similar to the person who prays whole night, tahajjud या रात भर इबादत करना और दिन भर रोजा रखना, then he should do hard work to have a good character. That's what he said. Subhanallah. So आपको अगर रात भर इबादत करने का सवाब चाहिए और दिन भर रोजा रखने का सवाब चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छा अखलाक वाला बनना चाहिए. ओके इंशाल्लाह. अब अच्छे अखलाक होते क्या हैं? मैं आपको एक बात बताकर समझाना चाहती हूँ. जो मैं दिख रही हूँ, the way I appear to you or the way you think of me, I am Dr. Lubna Fatima, and the way you look at me from where you are sitting, that is my reputation. What is that? That is my reputation. You are seeing me, and whatever your thoughts are about me, that is my reputation, that which appears to you. Okay. The second is my personality. Personality is something that I try to show you. I am having a good attire, I am standing well, I am standing very mannerable, okay, I am acting very much in manners. So that is my personality, that I am showing it to you. That's how I am pretending to be. The third point is the character, what I am actually, okay. When I am alone in my room, in my house, when no boundings are there, that is what I am. आप जो घर में होते हैं वो आप स्कूल में नहीं होते हैं, जो आप स्कूल में होते हैं वो आप घर में नहीं होते हैं, राइट? यू आर वेरी फ्री विद योर पेरेंट्स, यू आर वेरी फ्री विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अगर छोटा भाई कुछ गलत करेगा तो छटाक से लगा देंगे, लेकिन अगर वही स्कूल में कोई फ्रेंड बुरा करे तो आप क्या करेंगे? अपने आप को रोकेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट योर ब्रदर, दैट्स नॉट योर होम, राइट? घर में आप मम्मी से जैसा चाहे बात करेंगे, लेकिन आप स्कूल में आके टीचर से वैसी बात नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ. सो वन इज रेप्यूटेशन, सेकेंड इज पर्सनालिटी, थर्ड इज कैरेक्टर. रेप्यूटेशन इज समथिंग दैट पीपल थिंक ऑफ यू एंड दिस कैन बी रूइंड एनी टाइम. ये कभी भी बिगड़ सकता, एंड दैट इज नॉट डिपेंड ऑन यू, इट इज ऑन देयर थॉट. कभी भी आपके बारे में अच्छा भी सोच सकते, कभी भी आपके बारे में बुरा भी सोच सकते. दैट इज देयर थॉट, दैट विल नॉट बी कंट्रोल्ड, और वो कभी भी खराब हो सकता. यू कैन इमेजिन लाइक अ पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन मालूम है आपको कौन होता है? अ पब्लिक फिगर हु हेल्प्स द कम्युनिटी. तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? इलेक्शंस के टाइम पे अच्छा सा पिक्चर बना के सबके सामने रखते हैं, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो, है ना? पैसा डालते हैं, सारा उसमें खर्च करते हैं. लेकिन जब वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो लोगों के लिए अच्छा नहीं करते, यूजुअली अच्छा नहीं करते. तो जब वो पैसे डालकर एक अच्छा पिक्चर बनाते हैं तो वो बाद में बिगड़ भी सकता है, राइट? द सेकेंड इज पर्सनैलिटी. आप एक अच्छी स्माइल बनाने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, आप अच्छा दिखने के लिए पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, जो भी आप करते हैं, अच्छे नीट कपड़े पहनते हैं, ये आप अपने आप को बताने के लिए करते हैं. कभी मैला भी हो सकता कपड़ा, कभी हमारे दांत खराब भी हो सकते हैं, है ना? उसके अंदर आपका कोई ज्यादा जो है इनपुट रहता है, लेकिन रिवॉर्ड उतना नहीं आता. कि आपकी स्माइल अगर आप अच्छी कर लेंगे तो कोई बार बार दिन भर में ये नहीं बोलेगा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, दिन भर तो नहीं बोलेगा ना. लेकिन द लास्ट थर्ड पॉइंट दैट इज कैरेक्टर, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है. सच बोलने के लिए कितना ताकत लगती है ना. सच बोलेंगे तो मार भी पड़ सकती, सच बोलेंगे तो सजा भी मिल सकती, लेकिन सच बोलना अच्छी बात, सच बोलना जरूरी है ना? तो अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा होते हैं. रेप्यूटेशन बिल्ड करने के लिए मेहनत और पैसा कम लगता है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इमीडिएट रहता है, लेकिन इमीडिएटली रूइन भी हो जाता है, यानी खराब भी हो जाता है. उसी तरीके से पर्सनालिटी जो आप बनाते हैं, कपड़े, जैसे मैंने कहा, अच्छे कपड़े आप सुबह में नीट पहन के आएंगे, शाम तक आपका व्हाइट स्कार्फ मैला हो जाता है ना? लेकिन कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो कभी भी खराब नहीं हो सकता अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग अपने पास रखेंगे. ठीक है?
तो अब इस कैरेक्टर के लिए जो 6 C's रिमेंबर करने के लिए आप लोगों को मैं देने वाली हूं, उसमें से पहला पॉइंट है कॉन्शायंस। इंग्लिश में कहते हैं C से कॉन्सायंस, ठीक है। उर्दू में उसे कहते हैं जमीर, ठीक है, जमीर। अब जमीर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, अगर मैं आपको उसको आसान अंदाज में कहूं तो इट इज अ मोरल कंपस। मोरल कंपस, थोड़ा सा पानी। मोरल कंपस का मतलब ये है कि जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स के जो एंगल्स फाइंड आउट करना रहता तो क्या यूज करते आप कि ये डिग्री कितना है, कंपास रख के आप फाइंड आउट करते, राइट। So to measure something you need to have a compass. So that moral compass is given to us by Islam. Okay? So conscience, ज़मीर का माना होता है कि कभी आप कोई ऐसा काम करते जो आपको लगता कि ये गलत था, वो कैसे पता चल रहा हमको? क्योंकि एक नेचुरल हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, बिकॉज वी आर ऑल born on the deen of Islam. When we were born, we were Muslims. Right? And anyone who is born in the houses of non-believers, they are also Muslims. But when they grow up, their parents teach them whichever religion they are on, right? So every one of us is born on the religion of Islam. So that moral compass is feeded in us. Software बैठा हुआ है. अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी को एनर्जी मिलती है. Prophet sallallahu alaihi wasallam told us through a सहाबी, दैट एक सहाबी बहुत छोटे थे उनके सामने, तो उनको कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अल्लाह से डरते रहो जहां कहीं रहो। यानी कि आप अकेले कमरे में भी हैं और आप रोजेदार हैं, तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे, क्योंकि आप रोजा है। आप किससे डर रहे? अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अकेले कमरे में भी देख रहा है, इसीलिए आप खाना नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो फीडेड है, तकवा है, अल्लाह से डर है। इसी तरीके से सच बोलने वाली बात, अच्छा काम करने वाली बात, हर चीज के लिए किससे डरना है? अल्लाह से। नहीं, टीचर को तो नहीं मालूम कि कल मैं दावत में गई थी लेकिन मैं बीमार नहीं थी इसीलिए होमवर्क नहीं हुआ। यू नो द कॉमन रीजंस दैट वी गिव व्हेन वी डोंट डू होमवर्क, वी से बीमार थे मैडम, वो नहीं था, ये नहीं था, यू नो। बट इफ यू से द ट्रूथ, व्हाट विल हैपन? हाँ, टीचर बोलेंगे दावत में जाया करो और एग्जाम के लिए तैयारी ना करो या होमवर्क ना करो और कह दो कि बस होमवर्क नहीं हुआ, यू नो। सो क्या होता है कि जब आप ट्रूथ करेंगे या ट्रूथ कहेंगे, एक बार आप बोलेंगे टीचर हाँ दावत में गए थे, होमवर्क नहीं हुआ, कल के दिन नेक्स्ट टाइम यू विल बी गिल्टी कि बार बार दावत में जब जा रहे हैं तो होमवर्क नहीं हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। लिहाजा व्हाट विल यू डू? नेक्स्ट टाइम यू डू द होमवर्क, यू मेक एन एफर्ट, बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विल बी अचीव विदाउट एफर्ट। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एग्जाम हो रहा है, दूसरों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप उदास होकर बैठ जाएंगे? अच्छा, अगर आप उदास होकर बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ओवरनाइट? नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप अपनी सहेली के मार्क्स को बीट कर सकेंगे, आप ओवरसीड कर सकेंगे। है कि सही बात है कि नहीं? तो इसी तरह से कॉन्शियस बिल्डअप करने के लिए भी एफर्ट लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन यू हैव टू बिल्ड अप दैट कि भाई जो सच है वही करना है। तो कहा कि कैसे पता करें कि ये सच है या नहीं, ये गलत है या सही, कैसे पता चलेगा? तो एनीथिंग दैट प्रिक्स इन योर हार्ट इज अ सिन। जब भी आप कुछ गलत काम करने जाओगे तो ऐसे आपको अंदर से खिंचाव होगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। दैट इज योर मोरल कंपस। ओके, समथिंग दैट स्पॉइल्स योर स्लीप। जब आप सोने जाते हो और आपको फिक्र लगती है कि अगर ये किसी को पता चल गया तो, समथिंग दैट यू आर फियरफुल ऑफ कि अगर टीचर को पता चल गया तो, अगर मम्मी को पता चल गया तो दैट इज अ सिन, दैट इज अ रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाई यू आर fearful, that's why you are afraid of that being coming into the public। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग कार्टून्स में सुनते होंगे ना ऐसे बातें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये किया,
तो ये जो बात हम सीखते हैं ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, दैट इज रॉन्ग. हाँ, at a very high level there must be something like investigation or a very big operation, then okay, you can maintain some secrecy, but something that on your personal level is wrong, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, is the compass of telling you that that thing is wrong. So this is one of the things that you can understand. The second C is being compassionate. Compassionate माने रहम का मामला करना. You have to be loving, you have to be caring for others. अब आप लोग स्कूल आते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, टीचर होते हैं, आपके क्लास में कोई आपसे छोटा होता है, आपकी क्लास में थोड़ा कोई आपसे बड़ा होता है. Now understanding them and feeling for them is what is compassion. Compassion को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि compassion एक ऐसी चीज है कि जो जिसको नहीं चाहिए उनको भी आप देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, इंग्लिश में यू वुड से दैट कंपैशन इज व्हेन पीपल डोंट नीड इट एज वेल, यू विल गिव इट टू ऑल दोज हु डोंट डिजर्व इट. हम कहते हैं ना कभी, उन्होंने डिजर्व नहीं करते, वो दे डोंट डिजर्व इट. फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का में बहुत जुल्म हुए, है ना. मक्का की लाइफ थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. जो नॉन बिलीवर्स थे वो बहुत ज्यादा जुल्म करते थे. वो जब नमाज में जाते थे उनके ऊपर गोबर लाके डाल देते थे. They used to put cow dung or the camel dung on his back when he used to go in sujood. They used to put garbage in front of his house. They used to do the worst things that they can do to hurt him. But when Prophet sallallahu alaihi wasallam conquered Makkah, when he went to Medina and when he conquered Makkah, he had all the rights, he had all the power to have given them some punishment, है ना. हमको कभी कोई हर्ट करता है, हमको कैसे लगता है, रिवेंज दिमाग में आता है, जब मुझे मौका मिलेगा ना ऐसा बदला लूंगी, है ना. तो when there is an option of not taking the revenge and being compassionate to them, that is where you are at the highest level of being compassionate. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, what did he do? उस दिन मक्का के लोग सोच रहे थे कि आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल हो गए, ये शायद हमें मार ही डालेंगे, शायद ये हमें कत्ल ही करवा देंगे. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज मैं आप लोगों को माफ करता हूँ. अल यौमुल मरहमा, उन्होंने कहा. People thought it is the day of slaughter. अब सारे मुसलमान मिलके हमें काट देंगे, लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज हम तुमको माफ करते हैं. कितनी बड़ी माफी है. इसी तरीके से हमारे अंदर भी क्या चाहिए, लोगों को माफ करना, प्यार करना, इतना ज्यादा कि वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करे, है ना. कभी चोर होता है, चोरी करके चले जाता है, कई जगह पे हम देखते हैं कि माफी बहुत ज्यादा बड़ी नेकी है ना. तो कई जगहों पे ऐसा देखा जाता कि लोग किसी के साथ नाइंसाफी करते, इनजस्टिस करते, लेकिन जब बात आती बदला लेने की, तो अगर आप उनको माफ कर देते हैं तो दे गेट वेरी हैप्पी, राइट. बट इफ यू गिव देम द पनिशमेंट, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट तो हो जाती है, उसके बाद में आपके और उनके बीच में थोड़ी सी दरार हो जाती है, देयर सम स्प्लिट बिटवीन यू, राइट. कभी आप बदला ले लेते हैं कोई फ्रेंड से, उसके बाद में दोस्ती उस बराबर हो सकती नहीं होती. तो व्हेन यू हैव दैट कंपैशन, किसी को माफ करने वाला जज्बा आपके अंदर होता है, तो यू बिकम अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी. आपके अंदर वो सब्र और वो करेज आता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉन्शियंस, CONSCIENCE, साइंस पढ़ते ना आप लोग, उसी को CON लगा दीजिए. कॉन्शियंस का माना होता है अंदर का मोरल कंपस, जिससे कि आपको सही और गलत की पहचान होती है. सेकेंड पॉइंट क्या कहा मैंने, कंपैशन. कंपैशन यानी कि मोहब्बत करना, रहम करना, लोगों को माफ करना, काइंड रहना, है ना. उनकी मदद के टाइम पे मदद करना. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था और उसने कुछ पैसे सेव किए थे अपने घर के इस्तेमाल के लिए. बहुत ही मुश्किल से, मेहनत से. रास्ते में एक मांगने वाली आ जाती, समवन हु इज अ बेगर. छोटा सा बेबी हाथ में लेकर कहती है, मेरा बच्चा मरने वाला है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा नहीं तो. एंड दिस मैन वाज सो कंपैशनेट दैट ही gave the money to her and he went home. Now when he went home, people around him said, बच्चे उनकी जो बीवी है, वाइफ, she says,
you got duped, मतलब आप धोखे में आ गए, वो एक्चुअली नहीं है। होता है ना, when you go on the ways, on the roads, you see people who are acting like they are not good or they are ill or something. They show letters, they show papers of hospitals, but they sometimes have scams. They are not true, right? So now this lady who had the child in the hand, and the people in the home, they said, you have been scammed, your money was taken in a wrongful manner, that kid was not died. Immediately there is a news on the TV, and that same lady appears, and the news channel says this lady was scamming every day. This lady was on the signal every day and she was taking money from others, and she's been caught by the police. Now the man, he knows that okay, wrongfully his money is taken. But what happens, you know, that man is happy. Usually what should happen? We'll be angry. We'll be angry. अरे हाँ, मेरे से ऐसा धोखा हो गया. You know, someone took the money wrongfully with me. But the man is happy. And he says, don't you see that the baby is not dying? दिमाग में क्या था? The reason to give the money was to save the baby, right? The baby is not dying. That is more important. Understand? तो आपकी जो नीयत है, आपका जो इंटेंशन है, वो तो कंप्लीट हो गया ना. अल्लाह की नजर में आपकी चैरिटी तो एक्सेप्ट हो गई ना, है ना. सो दैट अमाउंट ऑफ कंपैशन शुड बी देयर इन यू. दैट इज द लेवल ऑफ कैरेक्टर. विल यू ऑल वर्क फॉर इट इंशाल्लाह? सो डोंट बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. डोंट एक्ट इमीडिएटली. कभी आपकी कोई सहेली आपके साथ कुछ करती हैं तो आप फौरन से रिएक्ट नहीं करना. टीचर आपको कुछ कहती हैं तो फौरन से एंग्री नहीं हो जाना. You know, you have to be very compassionate. Probably someone said it to you because it is for your good. आपकी अम्मी कुछ कहती हैं, आपके अब्बू कुछ कहते हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ कहते हैं. Don't react badly. Accept for that moment. Remember that there is something good in it, inshallah. Okay? Now the third point is courage. Courage माने when you have a truth to tell. जब आपको सच्चाई पे रहना है तो आपको हिम्मत करना पड़ेगा, है ना. अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे. पेट में दर्द था, ये था, वो था. बट व्हेन यू टेल द ट्रूथ, देयर विल बी अ सॉल्यूशन फॉर इट, है ना. जब आप सच्चाई पे रहेंगे हमेशा, वहां पर एक सॉल्यूशन आएगा. जैसे कि आप कहेंगे सच बोलने से डर लगता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल. आप लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पता है? पता है कि नहीं पता है? मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगता था. जब उन्होंने देखा कि वो लकड़ी सांप बन गई तो उनको डर लगा. नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक पावर दिया था कि उनके पास एक लकड़ी थी, कहा उनको कि लकड़ी डालो, और वो लकड़ी क्या हो गई? सांप बन गई. तो उनको क्या लगा? डर लगा. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मत डरो, बट कॉन्फिडेंट रहो, करेजियस रहो और उठाओ. तो फिर वो लकड़ी बन गई. तो फियर होगा. When you are courageous enough, जब आपको हिम्मत करना पड़ेगा, लेकिन फियर रहेगा. फियर को ओवरकम करके आप जब सच बोलेंगे तो वो आपका साथ बनेगा. जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लकड़ी को देखा, फिर फियर हुआ, फिर हिम्मत की, करेज आया, फिर उन्होंने क्या किया? जब आखिरी में जरूरत पड़ी, पानी के पास जब गए, लकड़ी को मारा तो क्या हो गया? पूरा समंदर अलग हो गया. कितना पावरफुल करेज है ना. करेज कितना पावरफुल है कि एक समंदर को भी सेपरेट कर सकता है ना. तो यू हैव टू बी करेजियस टू स्टैंड विद द ट्रूथ. विल यू बी? इंशाल्लाह. सो कितना भी बड़ा सच होने दो, कितनी भी बड़ी उसकी सजा होने दो, आप क्या करेंगे? सच पर रहेंगे. जो सच्चाई है उसी का साथ देंगे. अगर हम में से एक एक इंसान ये क्वालिटीज को अपने अंदर लाएगा तो जरूर एक दिन हम अच्छी सोसाइटी बनाएंगे. जैसे कि आज सब परेशान है, अरे हर जगह बुराई है, हर जगह बुरा हो रहा है. अगर आप इतने सारी लड़कियां मिलकर ये डिसाइड कर लेंगे कि हम अच्छे कैरेक्टर वाले बनेंगे तो आपकी पूरी सोसाइटी भी इंप्रूव हो जाएगी, है ना, इंशाल्लाह. द फोर्थ सी इज कॉन्फिडेंस. एक तो करेज हो गया, दूसरा है कॉन्फिडेंस. करेज फियर के साथ होता है, लेकिन आप हिम्मत करते हैं. कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको ये पता होता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, 100% ट्रूथ है. जब आपको पता रहता है तो आप क्या करते हैं? कॉन्फिडेंट रहते हैं. अगर आप थोड़ा सा डाउट में, पता नहीं मेरे फ्रेंड बोले है कि नहीं है कि, है कि नहीं है कि, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो यू हैव टू बी श्योर. एग्जाम्स लिखते हैं आप लोग,
कॉन्फिडेंट कब रहते हैं? जब आंसर करते हैं तो, जब आपको पता है, जब आप पढ़ चुके, जब आपने रीड कर लिया लेसन, जब आप श्योर हो गए, व्हेन यू हैव बाय हार्टेड द आंसर्स, यू विल बी कॉन्फिडेंट, राइट? सो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको पता है कि ये 100% ट्रूथ है। क्या कुरान 100% ट्रूथ है? यू आर श्योर अबाउट इट? सो डू यू हैव टू हैव एनी डाउट इन दैट? नो, यू नो 100% दैट जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए सिखाए वो सारी चीजें क्या है? 100% ट्रूथ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि नमाज 5 वक्त पढ़ो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? झूठ मत कहो, गुनाह होता है, तो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए हमेशा। इसी तरीके से जितनी सारी अच्छाइयां बताई हुई हैं कुरान में, हदीस में, 100% ट्रुथ है। तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अबाया पहनना, हिजाब करना 100% सही है कि नहीं है? तो क्या छोड़ना चाहिए उसको कभी? बड़े होने के बाद सोच रहे नहीं मेरा दिल चाहा तो पहनूंगी, दिल चाहा तो नहीं पहनूंगी। इज इट योर हार्ट और इज इट योर दीन? It is the deen. It is Allah subhanahu wa ta'ala who commanded. So you will be on the straight path. So you have to have the confidence. कभी कोई आके आपको कह देगा कि स्कार्फ उतार दो, आप अच्छे नहीं लग रहे आप, तो आप क्या बोलेंगे? घर में तो उतारेंगे, बट इफ समटाइम व्हेन यू ग्रो अप, आपको बाहर कभी जाना पड़ा और कोई बोला नहीं आप लोग मुसलमान क्यों पहनते, स्कार्फ निकाल दो, अच्छे नहीं दिखते, अरे इतने अच्छे बाल है आपके, क्यों नहीं निकालते आप, स्कार्फ निकालो, या हिजाब मत करो, आप जो है दूसरे लड़कियों की तरह जीन्स वगैरह पहन के बाहर घूमो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? दिल चाहेगा, दिल तो चाहता कभी, क्योंकि शैतान रहता है ना, बोलता कि हाँ हाँ अच्छे दिखेंगे शायद, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी आर मुस्लिम्स, वी आर ट्रू मुस्लिम्स, वी आर गुड मुस्लिम्स, वी विल डू इट ऑलवेज। नमाज है, अरे अपन जाएंगे, खेलेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, आज छोड़ दिए तो कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस रहा तो क्या होता? नहीं नहीं नमाज तो पढ़ना है, आज की नमाज आज ही पढ़ना है, कल पढ़ सकते? अच्छा फिर कल की नमाज कब पढ़ेंगे? फिर परसों की कब पढ़ेंगे? क्या इतना टाइम मिलेगा कि 4 दिन की नमाज आप पूरे मिला के पढ़ें? नहीं मिलेगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा करें, बिकॉज दैट विल ब्रिंग डिसिप्लिन इन यू। 5 वक्त की नमाज अपने अपने टाइम पे पढ़ेंगे, डिसिप्लिन आएगा, वरना क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं आएगा। सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे, खेल रहे हैं तो खेलते ही रहेंगे, है ना? डिसिप्लिन क्या है? खाने के टाइम पे खाना खाना, सोने के टाइम पे सोना, स्कूल के टाइम पे स्कूल जाना, है कि नहीं? डिसिप्लिन आएगा ना? एंड व्हेन यू आर डिसिप्लिन यू आर इन अ गुड कैरेक्टर इंशाल्लाह। पैरों में डिस्कम्फर्ट जिसको भी हो रहा, थोड़ा सा उठ के बैठ सकते हैं आप लोग। एंड द अदर सी इज, I need to see it. Being considerate, ठीक है? Being considerate, सामने वाले को कोई चीज की जरूरत है, जैसे क्लास में कोई नई स्टूडेंट आ गई, तो आप क्या करेंगे? उसको डिसाइड करने में मुश्किल हो रही कि कहाँ बैठना है, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गिव हर स्पेस। यू हैव टू बी कंसिडरेट। सामने वाले को कोई चीज की जरूरत है, आपको क्या करना है? उसकी जरूरत को समझना है ना? समझना है। या आप फिर इनकंसिडरेट हो, नहीं मेरी जगह तो नहीं दूंगी मैं, आई विल नॉट मूव हियर, आई विल नॉट मूव हियर। हालांकि कभी ऐसा होता है कि एक ही बेंच पे एक ही लड़की बैठी हुई है, व्हाट शी विल डू? शी विल मूव हियर एंड से नो प्लेस, शी विल मूव हियर एंड शी विल से नो स्पेस। दैट्स बीइंग इनकंसिडरेट। यू हैव टू बी कंसिडरेट। कंसिडरेट का माना है कि दूसरों के लिए एहसास रखना, फीलिंग फॉर अदर्स, कि दूसरों को भी उसकी ये चीज की जरूरत हो सके। जैसे प्यास आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरी प्यास तो ठीक है, आई कंट्रोल, आई गिव इट टू अदर्स, ओके, आई गिव माई वाटर टू अदर्स, आई गिव माई स्पेस टू अदर्स, आई लेट द अदर्स सिट, आई गिव द सीट टू माई टीचर, वट एवर इट इज। सो बीइंग कंसिडरेट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। इंशाल्लाह आप लोग इसको डेवलप करेंगे अपने आप में। तो पहला क्या था? conscience, second is compassionate, third is courage, fourth is confidence, fifth is being considerate, okay, considerate रहना। The sixth and the very most important thing of all these things which will help you grow in all the other 5 points, the sixth thing is control. What is it? Control. जब कभी भी आपको
कोई गुस्सा दिलाते, कोई ऐसी चीज करते जिससे कि आपको हर्ट हुआ, आप गुस्सा नहीं होना है। दैट इज द अल्टीमेट कैरेक्टर ऑफ समवन who will help them become very strong। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके किसी ने पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रांग वो है जो रेसलिंग में जीत जाए? क्या स्ट्रांग वो है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्ट्रांग वो नहीं है जो रेसलिंग पता है ना, जैसे कुश्ती लड़ना, या फॉर एग्जाम्पल हाथ का जो हम करते ना, हाथ की रेसलिंग करते तो हाथ लड़ाना जैसे करते, पंजा लड़ाना। तो क्या कोई भी ऐसी जीत में स्ट्रेंथ है? क्या ये स्ट्रेंथ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा स्ट्रेंथ ये है कि कोई अपने एंगर पे पावर हासिल करे, हु कंट्रोल्स द एंगर। आपको पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, बड़े बड़े ऑफिसेज वाले भी पर्सनालिटी ट्रेनिंग कराते हैं, स्कूल्स में भी कराते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एंगर मैनेजमेंट में जाता है, बिकॉज एंगर विल स्पॉइल एवरीथिंग। एंगर ऐसे स्पॉइल करता है जैसे कि आग होती है ना, लकड़ी को जब आग लगाते हैं तो क्या होती है, पूरी लकड़ी जल जाती है। इसी तरह आपकी सारी अच्छाइयां, जो भी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर है, एंगर विल स्पॉइल ऑल ऑफ देम। आप अच्छी लड़की होंगे, लेकिन व्हेन यू शो योर एंगर ऑल योर गुड क्वालिटीज आर वेस्ट। कहते हैं कि चलिए ये लड़की है कोई फातिमा, ठीक है, फातिमा सब अच्छा करती भाई, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत है। तो क्या होता, एवरीवन विल बी लाइक फियरिंग टू गो टू हर, है ना। उनको लगता कि नहीं, इनके पास जाने से कोई मिलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि शी विल ऑलवेज बी इन एन एटीट्यूड, शी विल ऑलवेज बी एंग्री। सो बीइंग ऑलवेज एंग्री, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एटीट्यूड इज नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज अच्छाई भी आपके पास नहीं आ सकती, अच्छे लोग आपको नहीं मिल सकते, बिकॉज अच्छे लोगों को एंगर पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो एंगर इज अ थिंग दैट विल रिपेल ऑल द गुड फ्रॉम यू। जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते ना आप, ओडोमॉस लगा लेते या फिर ऑल आउट लगाते मच्छर नहीं आने के लिए, उसी तरीके से एंगर है। जब आप एंगर रखेंगे अपने अंदर तो कोई अच्छाई आपके पास नहीं आएगी। तो कंट्रोलिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द बैड क्वालिटीज में बहुत सारे हो सकते, टेलिंग लाइज, बीइंग लेट, बीइंग इनडिसिप्लिन्ड, बीइंग रूड, बीइंग एंग्री, ये सारे बैड क्वालिटीज है। ठीक है, तो ये बैड क्वालिटीज को कंट्रोल करके अपने से दूर रखना इज अ good quality, and this is the 6th point of all the 6 C's that I told you, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग ये सारी पॉइंट्स पे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। एक लास्ट आपको एक वाकया, एक इंसिडेंट बता के मैं अपने लेक्चर को खत्म करूंगी इंशाल्लाह। एक लड़का था छोटा सा, ठीक है, 6 इयर्स का था, वो रोड से जा रहा था। रास्ते में उसने किसी के घर के सामने ही सॉ अ रेड कलर वेरी ब्यूटीफुल कार, वेरी लेटेस्ट कार। ओके, बच्चों में, बॉयज में ये चीज अच्छी लगती ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स। सो नाउ दिस बॉय sees the car and he just amazed at the car's beauty and he stands there and keeps looking at the car. Someone comes from the house, घर के अंदर से कोई बाहर आता है और जस्ट वो लड़के को देखते हैं और वो लड़के से पूछते हैं what are you looking at? He says I am so happy to see this car. I am very much in love with the car. I like the car so much. The man who came from inside, he says, yes, even I like it very much. My brother gifted it to me. My elder brother gifted it to me, he said. Immediately आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आप अगर उस जगह पे होते तो आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? Anyone? You also think, काश मेरा भी ऐसा भाई होता, काश मेरे भी ऐसे भाई होते और जो मुझे गिफ्ट करते। But you know what the child said? The 6-year-old boy, he said, काश मैं एक ऐसा भाई होता। I wish I was that brother who could gift something like this to my brother. You know, to have that thought कि अच्छा हो तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, अच्छा दूसरों के लिए होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास कैपेसिटी है, if I have the capacity to do good for others, then I should be that person. ठीक है ना? तो that amount of richness, that is the richness of the heart. When you are content with everything that you have and you want to give others, that is a very good quality. So क्या आप वो बड़े भाई बनना चाह रहे हैं या वो बड़ी बहन बनना चाह रहे हैं जो लोगों को दे, या फिर वो बनना चाह रहे हैं जो ले? देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। सीखा है ना आप लोगों ने?
इसी तरीके से हमेशा ये चीज़, ये फीलिंग होनी चाहिए कि यू शुड ऑलवेज कीप गिविंग. And when is that, when you feel that? When you are content, when you have control, when you have compassion, when you have love for others, that is when you have that quality, inshallah. With this, I would like to end the talk, and I hope that you have got the point that I have conveyed to you, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we all go on the right path and we are away from the wrong path. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. If you have any questions, you can ask me.